Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss competent to contract. Means who is competent to contract? Who can make a contract? Is it clear? Now, if you look in if you see your direct of contract, nowhere it is clearly mentioned that an agreement with a minor, or if a minor enters into an agreement, it will be voidable at his option or altogether void. So it was decided after a very important case law, very famous case law, Mohari BB case, whether an agreement with minor is void or voidable. Is it clear? Let us start. Before starting the topic, let me tell you how a question can come. Essential conditions are given under section 10. Essential conditions are given under section 10 of Indian Contract Act. First condition was offer and proposal, we have discussed. Intention to create legal relation, we have discussed. Consideration, we have discussed. Genuine consent between the parties, we have discussed. Now we are doing the parties to the contract are legally capable of contracting. Is it clear? So किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं? Minor is very jealously protected party against contractual obligation. Minor is a very jealously protected party against contractual obligation. Comment. और इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, डिस्कस लिख देंगे, कमेंट लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट अपॉन माइनर्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी मैंने आपको बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैं एक माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट अपॉन माइनर्स कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. The whole law is based on interpretation as by the English court. Comment. Or what are the different aspects of law relating to capacity of minor? Is it clear? Now we are saying the person who is competent to contract only can make a contract. Section 10 says parties must be competent to contract. But who is competent to contract? Now question arises, who is competent to contract? Section 11 mentions two conditions, positive and one condition, negative. That is, first positive condition is he should be age of majority. अब majority age क्या है? 18 है, और अगर guardian अपॉइंट के then it is 21. Is it clear? 21. Second positive condition is he should be of party who is making a contract should be of sound mind. Now last, that is negative condition, it said not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Not disqualified from contracting by any law which he is subject. These three conditions are mentioned under section 11. Now I have told you that nowhere it is said in contract whether an agreement with minor is void or voidable. Firstly, this issue came before the court was that when one party is a minor or both are minor, what is the nature of transaction. So we'll decide a famous case on this point, that is Mohari BB versus Dharmodas Ghosh. Mohari BB versus Dharmodas Ghosh. आया इस केस में एक ही इशू था, बट काफ़ी और कुछ और इश्यूज क्रिएट हो गए थे. सो लेट अस डिस्कस दी के फैक्ट्स. पहले हम फैक्ट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस लो है, प्लीज़ ध्यान से सुनना इसको.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस केस लॉ। पूरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इसी केस के आसपास घूम रहा है। इज इट क्लियर? सो फैक्ट्स क्या हैं इस केस के? फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर, धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर सन ऑफ रिच जमींदार. The father died leaving Dharmodas Ghosh as succession and widow also. Therefore, entire property technically was vested in Dharmodas Ghosh. He was grown up person in the age group of 17 to 17-18 साल का. 7 अभी 18 का कंप्लीट नहीं हुआ था. He was between 17 to 18 years. ठीक है. After the death of the father, mother was very sharp and shrewd, but she was handicapped by local customs and tried to control his son as he was involved in bad habits. ठीक है ना. अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो वही है कि जो हमारी पहले इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि ये जो विधवा है इसको ये नहीं करना वो नहीं करना. सो ही वॉज हैंडीकैप्ड बाय लोकल कस्टम्स, और अपने बेटे को भी वो कंट्रोल करना चाहती थी क्योंकि वो बैड हैबिट्स में चला गया था. Dharmodas Ghosh borrowed money from large number of people as a mother only gave pocket money. अब जिस बच्चे को बहुत गंदी आदतें हों, ड्रिंक करने की आदतें हों, जुआ खेलने की आदतें हों, तो उसको क्या पॉकेट मनी से सफिशेंट नहीं है, तो वो क्या करता था, बहुत लोगों से पैसे बोरो करता था क्योंकि उसकी मदर सिर्फ उसे पॉकेट मनी देती थी. Now people started harassing him, so he thought to borrow large sum of money from some money lender. अब जब अलग लोगों से लेता था, लोगों ने उसको हरास करना दिया था क्योंकि उसको पैसा वापस नहीं करता था. अब उसने क्या सोचा कि बड़ा अमाउंट ही बोरो किया जाए किसी मनी लेंडर से. So he approached local money lender and asked for the loan of more than rupees 20,000. Money lender asked for some valuable as security of immovable property. immovable property का तो उसको तो ये था कि अगर वो मनी लेंडर से पैसे ले रहा है तो उसे सिक्योरिटी तो चाहिए थी मनी लेंडर को. उसने कहा अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दो. He was asked to bring list of his property by money lender. Meanwhile, mother of Dharmodas Ghosh came to know about the visits of Dharmodas Ghosh to money lender. Then she sent message to moneylender that not to give any loan to Dharmodas Ghosh because he is a minor and you will be in trouble. मनी लेंडर ने क्या किया, धर्मोदास घोष से उसकी एज पूछी. उसने कहा कि आप मेरी एज क्यों पूछ रहे हो. वो कहते हैं क्योंकि आपकी मदर ने मैसेज भेजा है कि आप माइनर हो, यू आर अ माइनर. उसने कहा, धर्मोदास घोष क्या कहते हैं कि वो मेजर है क्योंकि उसने अपना ऑलरेडी 18th बर्थडे कुछ महीने पहले ही सेलिब्रेट किया है. और कहा कि जो और ऑल्सो सेड कि जो मदर वो कहता है कि मैंने 18 साल का हो चुका हूँ. क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया है, और मदर्स के लिए तो बच्चे और हमेशा बच्चे ही रहेंगे. अब मनी लेंडर के लिए मनी लेंडर कंफ्यूज हो गया, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी. मदर कह रही है माइनर है, बच्चा कह रहा है कि मैं मेजर हूँ और देखने से भी नहीं लगता तो वो माइनर है. सो प्रॉब्लम क्रिएटेड फॉर मनी लेंडर. ही वेंट टू कैलकाटा टू कंसल्ट अ लॉयर. मनी लेंडर कैलकाटा गए टू कंसल्ट अ लॉयर एंड डिस्कस द इशू विद हिम एंड आस्क दैट व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन इफ ही टर्न्स आउट टू बी अ माइनर. लॉयर ने इन्फॉर्म किया मनी लेंडर को क्या जो एग्जैक्ट लीगल पोजीशन थी कि ट्रांजेक्शन विद माइनर, एंड टोल्ड द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज़ नो व्यू बट देयर 2 व्यूज़ ऑफ अदर हाई कोर्ट्स. कैलकाटा हाई कोर्ट का भी तो कोई व्यू नहीं है इस पर. 2 हाई कोर्ट के हैं तो व्यूज़ हैं. वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वॉइड है. कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड बट इट मे बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर. अब क्या हुआ कि लॉयर ने धर्मोदास घोष को क्या कहा, सजेस्ट किया कि वो धर्मोदास घोष की एज को की रिगार्डिंग इंक्वायरी करें. दोनों मनी लेंडर ने भी और लॉयर ने भी लग गए इस काम में उसकी इंक्वायरी करने. उसके रिलेटिव से पूछा, उसके फ्रेंड से पूछा, नेबर से भी पूछा. अब कई लोग उससे धर्मोदास घोष से बहुत एनॉय थे, उसकी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा एनॉय थे. तो उन्होंने कहा कि लॉयर को बोला, लॉयर को रिप्लाई किया
कि आप नाइट में रात को आना और उसकी देखना उस क्या हालत है उसकी हैबिट्स क्या है, कि इस तरह की उसकी हैबिट्स है जो कि बड़े लोग भी नहीं करते, एडल्ट्स भी नहीं करते। सो लॉयर और मनी लेंडर को क्या इंप्रेशन मिला कि भाई मदर झूठ बोल रही है, धर्मोदास है वो मेजर ही है अकॉर्डिंग टू देम। इस वजह से उसको लोन दिया गया और दो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए सेम डे पे। वो क्या हुआ, एक तो प्रॉमिसरी नोट टू पे ₹20,000 विद इंटरेस्ट, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या एंटर हुआ था, मॉर्टगेज डीड ऑफ द प्रॉपर्टी विच वॉज ऑफर्ड बाय धर्मोदास घोष। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब उसे लोन मिल गया मनी लेंडर से, पैसे मिल गए हैं, पैसे मिल गए हैं। अब धर्मोदास घोष ने क्या किया, जो भी उसने लोगों से पैसा उधार लिया था वो सबको वापस कर दिया। जो मनी लेंडर से पैसे लिए थे वो उसको 3 साल में वापस करने थे। मनी लेंडर ने 2 साल बाद धर्मोदास घोष को बुलाया और उसे कहा कि उसके पैसे वापस कर दो, और अगर उसने नहीं पे किए तो वो मनी लेंडर कोर्ट में जाएगा, उसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा। अब धर्मोदास घोष के लिए प्रॉब्लम होगी, सो वो भी लॉयर के पास गया, उस लॉयर को कंसल्ट किया, उसने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की लॉयर के साथ कि वो ऐसे करके मनी नहीं दे सकता, और अगर उसने मनी वापस नहीं दिए तो उसकी 50,000 की प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्टगेज की है वो जाएगी। सो क्या लॉयर से वो कह रहे हैं कि कुछ किया जा सकते हैं। अब लॉयर ने क्या किया, सूट फाइल कर दिया, धर्मोदास घोष फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द मनी लेंडर। अगर अब एग्रीमेंट माइनर के साथ वॉइड होएगा तो दोनों डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉमिसरी नोट और मॉर्टगेज डेट, कैंसिल हो जाएंगी। अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या कहा, कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट माइनर के साथ एब्सोल्युटली वॉइड है, तो इसीलिए जो 2 डॉक्यूमेंट्स है प्रॉमिसरी नोट एंड मॉर्टगेज डीड वो कैंसिल होंगे एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट धर्मोदास घोष। सो ये पहला केस आया था जिसमें इतना हैवी वैल्यू की हैवी अमाउंट था। यह सो केस वॉज रेफर टू दी प्रिवी काउंसिल। कैलकाटा हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई वॉइड है। अब क्या, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है, पहले प्रिवी काउंसिल्स होते थे, तो ये जो केस था इट वॉज रेफर टू प्रिवी काउंसिल। ऑब्जेक्शन क्या लिया गया प्रिवी काउंसिल के सामने बाय द लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ मनी लेंडर। क्या ऑब्जेक्शन लिया उन्होंने कहा कि जो धर्मोदास घोष है, ही हैज़ कमिटेड फ्रॉड बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज। ठीक है, पहला उन्होंने क्या लिया कि लॉयर के वकील ने क्या कंप्लेंट किया, उन्होंने कहा कि भाई इसने अपनी एज में से प्रेजेंट करके फ्रॉड कमिट किया। नाउ क्वेश्चन अराइजेज वेदर फ्रॉड वाज कमिटेड बाय धर्मोदास घोष और नॉट। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा इस केस में कि धर्मोदास घोष इज़ नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड बिकॉज धर्मोदास घोष ओनली अटेम्प्टेड फ्रॉड, दैट फ्रॉड वॉज नॉट कंप्लीट एज मनी, as money lender does not fully believe that Dharmodas Ghosh was major. He made inquiry about his age. Is it clear? जब हमने पढ़ा था कि अगर आप फ्रॉड को ऑर्डिनरी मीन्स से पता लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा जो स्टेटमेंट कर रहा है वो गलत है, वहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, वहाँ पे कोई ब्रीच नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फ्रॉड कमिट नहीं हुआ। यहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी भी किया, तब भी वो उसको मनी लेंडर ने पैसे उधार दी थी, तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कोई फ्रॉड कमिट नहीं हुआ। इज़ इट क्लियर? नाउ सेकेंडली उन्होंने क्या कहा, मनी लेंडर के लॉयर ने क्या ऑब्जेक्शन उठाया, लॉ ऑफ एस्टॉपल। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट। नाउ लॉ ऑफ एस्टॉपल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ एस्टॉपल? इफ़ वी टॉक इन अ ले लैंग्वेज, अगर हम ले लैंग्वेज में बात करते हैं तो एस्टॉपल क्या है कि जो आपने स्टेटमेंट दे दी है, यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम योर स्टेटमेंट। So what section 115 defines, it says when one person has by his declaration
act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such other person or his representative to deny the truth of that thing. Is it there? क्योंकि इसमें यही हुआ कि जब माइनर ने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ अ मेजर क्वेश्चन अराइजेस, डज द लॉ ऑफ एस्टॉपल कंटेन्ड इन सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट अप्लाइज अगेंस्ट हिम? तो प्रीवी काउंसिल ने यहाँ पे क्या कहा, इट इज़ नॉट अ सिचुएशन ऑफ एस्टॉपल। उन्होंने कहा इस केस में धर्मोदास ने ट्राई किया था अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए, पर मनी लेंडर है, फुली उस पर रिलाई नहीं कर रहा था। और एस्टॉपल क्या कहता है कि पर्सन मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द स्टेटमेंट मेड बाय द अदर पार्टी। इज इट क्लियर? Now in this case, Privy Council held that agreement with minor is void ab initio. Here it says the agreement with the major is valid as provided under section 11. Therefore, agreement with minor is invalid. अगर कोई भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, चाहे वो नोन में स्ट्रेंजर है या उसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ही इज़ अ माइनर, therefore he cannot refuse it because in the eyes of law such transaction does not exist as to the arguments that minors agreement may be treated voidable. क्योंकि जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ इज़ अ बेसिस ऑफ इंडियन लॉ एंड अंडर इंग्लिश लॉ एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइडेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इंग्लिश लॉ में क्यों है वॉइडेबल है? अब रीज़न मैं आपको बताती हूँ। पहला रीज़न क्या है कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया में वो स्टैट्यूटरी लॉ है विच अलोन गवर्न्स द एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Therefore, agreement of minor has to be interpreted with the language of Indian Contract Act and not from his history or background as to the argument that agreement with minor may be treated as voidable and not void. So, simple answer in Indian Contract Act itself provides that what transaction is voidable, they are given under section 19 and 19A. And the legislature wanted, ठीक है, वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर 19 में फ्री कॉन्सेंट से नहीं है देन एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल, यही कहा है। अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती है कि माइनर का एग्रीमेंट पे हमने वॉइडेबल बनाना है तो दैट शुड हैव बीन मेंशन्ड इन द एक्ट। तो लेजिस्लेचर ने ऐसा नहीं किया, सो इंटेंशन इज़ क्लियर दैट लेजिस्लेशन डजंट वांट एन एग्रीमेंट विद माइनर टू बी वॉइडेबल, देयर इट हैज़ टू बी वॉइड बिकॉज इट कैन नॉट बी वैलिड आइदर. So lawyer on behalf of money lender accepted the agreement is void but requested to pay back rupees 20,000 without interest. ठीक है, जो लॉयर था मनी लेंडर का उसने एक्सेप्ट कर लिया कि एग्रीमेंट वॉइड है, पर रिक्वेस्ट किया प्रीवी काउंसिल से कि भाई जो 20,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट इसने मनी लेंडर ने माइनर को दिया है विदाउट इंटरेस्ट शुड बी पे बैक टू द मनी लेंडर अंडर सेक्शन 65 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब सेक्शन 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 65 क्या कहते हैं, व्हाट 65 सेज? सो इट सेज according to section 65 which a party receiving any benefit under a contract shall have to restore it if the contract becomes void or is discovered to be void. ठीक है, क्या कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या डिस्कवर टू बी वॉइड है तो उस टाइम पे क्या है कि पार्टी को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है वो दूसरी पार्टी को रिस्टोर करे. इज इट क्लियर? पार्टी को रिस्टोर करे. सो इन दिस, अब इस पॉइंट पे जब उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको 20,000 वापस दिया जाए तो धर्मोदास घोष का लॉयर आ गया. उन्होंने आर्ग्यू कहा कि सेक्शन 65 को अगर हम ध्यान से पढ़ें वहाँ वो सेक्शन 65 सिर्फ 2 सिचुएशंस में एप्लीकेबल है. वो 2 सिचुएशंस क्या है? एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड और एग्रीमेंट इज़ डिस्कवर्ड टू बी वॉइड.
इस केस में तो एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, नो, तो जो कंडीशन है 65 में कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है ना। मनी लेंडर डिड नॉट, सो इन दिस केस मनी लेंडर डिड नॉट गेट द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्टेड अमाउंट, नॉट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, ठीक है। मॉर्टगेज प्रॉपर्टी भी उसको मालिक को वापस करनी पड़ेगी। दिस वॉज द केस ऑफ मोहरी बीबी एंड धर्मोदास घोष। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर केसेस ऑन दिस. There are some doctrine of restitution, we will discuss that. Is it clear? We will discuss in the next lecture. Thank you.